اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ یکم ذی الحج کل ہوگی۔ عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ جی بالکل، حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا ہے۔ کے مختلف مقامات سے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، ٹیکسلا، مری، لاہور اور دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ یکم ذی الحجہ 1445 ہجری 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ دوسری جانب آج سے عید الاضحیٰ تک مارکیٹوں کے اوقات بڑھانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ جمعہ ہفتہ اتوار کو مارکیٹیں رات 1 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ہائی کورٹ نے عید الاضحیٰ تک مارکیٹوں کے اوقات بڑھانے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اس موقع دارو کیس کی سماعت کے دوران عید الاضحیٰ تک مارکیٹیں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات 1 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کے روز مارکیٹیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کو ملاوٹ مافیا نے جکڑ لیا۔ دودھ میں لاشوں کو محفوظ بنانے والے کیمیکل کے استعمال کے بعد مردہ جانوروں کے گوشت کی سپلائی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ٹولنٹن مارکیٹ میں مرغی کے مردہ گوشت کی سپلائی کا انکشاف۔ فوڈ اتھارٹی نے سینکڑوں من مردہ گوشت تلف کر دیا، جبکہ سپریم ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ عید قربان نزدیک آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں۔ بیوپاری شاہپور کانجرا اور دیگر مویشی منڈیوں میں دور دراز سے جانور لا رہے ہیں۔ بکرے، بیل سمیت دیگر جانوروں کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ قربان کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں بیوپاروں، گاہکوں اور جانوروں کی بنیادی ضروریات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بکرے کی کم سے کم قیمت 1 لاکھ مانگی جا رہی ہے۔ شہری سستے جانور کی تلاش میں ہیں۔ بیوپاروں کا کہنا ہے کہ اس سال کوئی بھی سستا جانور منڈی میں موجود نہیں۔ 20 من کا 20 لاکھ دا بھی ہے، 18 لاکھ دا بھی ہے، جہاں اٹھ 10 لاکھ دا ہے وہ بھی قیمت 12-13 من وزن ہوئے گا اس کا۔ قیمتیں ہیں مہنگی، ہر شے مہنگی ہے، ہر شے مہنگی ہے، کیڑی چیز سستی کھلوتی سمجھا کی۔ بیوپاری NFC سوسائٹی منڈی میں بھی جانور لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں رواں سال بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نسلیں الگ الگ ہیں، وزن الگ الگ ہے، ہر کہیں آپ ورائٹی سارا سسٹم الگ الگ ہے۔ رائیون روڈ، سندر روڈ اور شاہپور کانجرا کی مویشی منڈی میں موجود بیوپاروں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمتیں اس سال دگنی ہیں۔ جو جانور پچھلے سال 6 سے 7 لاکھ کا تھا وہ اس سال 15 لاکھ کا ہو چکا ہے۔ بکرے کی مختلف قیمت ہے، ٹھیک ہے، 70,000 کا بکرا بھی ہے، لاکھ کا بھی ہے، 1,20,000 کا بھی ہے، 1.5 لاکھ کا بھی ہے، 2 لاکھ کا بھی ہے۔ جس طرح کا گاہک ہوگا اس طرح کا بکرا ہے، وہ بھی مختلف ریٹ ہے نا۔ جس طرح کا بیل ہے، بیل تو 50 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے، مختلف ریٹ میں بیل مل جاتے ہیں۔ گاہک کم ہے، ٹھیک ہے، شام کے ٹائم گاہک آتا ہے لیکن کم آتا ہے، ابھی 2-3 دن کے بعد رش پڑ جائے گا ادھر۔ شہر بھر کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش لگا ہے، تاہم مہنگائی کے سبب متعدد افراد واپس جاتے بھی نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ اکثر سجاد، سٹی 42۔ عید الاضحیٰ میں چند ہی روز باقی ہیں، جبکہ شہر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری میں شہری مصروف ہیں۔ برکی روڈ پر منڈی میں ڈھولو بھولو نام کے بکروں کی جوڑی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ شہری عید قربان کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے جوش و خروش سے خریداری میں مصروف ہیں۔ برکی روڈ مویشی منڈی میں ڈھولو بولو کی جوڑی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بیوپاریوں نے ڈھولو بولو کے 6 لاکھ مانگ لیے۔ بیوپاری کہتے ہیں ان کی بچوں کی طرح پرورش کی، دیسی گھی، چنے سمیت دیگر چیزیں خوراک میں شامل تھیں۔ ڈھولو بولو ہم نے خود نام رکھا ہوا ہے اور اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں 6 لاکھ روپیہ۔ یہ تو خاصیت یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، اور یہ جو مکھی چین ہیں ان کی خوبصورتی کے آخر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے پرورش بہت کی، ان کو دودھ دیا ہوا ہے، ان کو چنے دیے ہوئے ہیں، ان پہ بہت سا خرچہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کی ہم نے 4.5 لاکھ روپے قیمت لگا دی، لیکن بھائی کہتے ہیں نہیں، 6 لاکھ روپے چاہیے اس کا۔ ماشاءاللہ بکرے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بکرے ہیں۔ دور دراز سے جانور بیچنے کے لیے لاہور آئے بیوپاری انتظامیہ کی جانب سے بہتر سہولیات کا انتظام نہ ہونے کا شکوہ کرتے بھی نظر آئے۔ وہ ہے کہ منڈی سانوں روڈ تو 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
और इस वजह तो गाहक जिहड़ा है ना और आन जान का सानू बहुत मसला है और परेशानी है और सानू खतरा भी इस चीज़ का है और इस वजह तो गाहक की आमदो रफ्त बहुत इत्थे कम हैगी है। बाकी रह गई सहूलत की गल, सहूलत जिहड़ा पानी है वो भी सानू मिल रहा है, उस तो इलावा लाइट है उनका भी बंदोबस्त है, तंबू का खैर जरा अजे कोई जरा ना उनका निज़ाम नहीं है। और इस दफ़ा अभी गाहक नहीं आ रहे, लेकिन जब गाहक आएगा तो तभी पता चलेगा अभी रेट का कितना बकरे का लगता है, कितना छतरे का लगता है। इंतजामी अहदेदारान का कहना है पूरी कोशिश कर रहे हैं खरीदारों समेत व्यापारियों को तमाम सहूलियात फराहम करें। जो मवेशी मंडी का जो सेल पॉइंट लगा है जो अजीज़ भट्टी जोन में है, इसमें तमाम सहूलियात है। इनको चारा दे रहे हैं हम जानवरों को, पानी का इंतज़ाम है, कैंप लगा के दिए हैं, जनरेटर का इंतज़ाम है, बिजली का, सिक्योरिटी का है, ऑल ओवर तमाम सहूलियात है। जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब था, हमने वो भी ठीक करवा दिया, मज़ीद वो आज ठीक हो जाएगा। मवेशी मंडी में एक जानिब खूबसूरत जानवर खरीदों का मरकज बन रहे हैं तो दूसरी जानिब जानवरों के रेट्स आसमान पर होने के सबब गाहक खाली हाथ भी घरों को लौट रहे हैं। कैमरामैन सामिन नवाज के साथ उमर अफजल, सिटी 42 लाहौर। सेहत और तालीम के खरबों रुपए के गैर तरक्याती बजट से मुतालिक हतमी तजावीज़ मरातब। सरकारी स्कूलों को 44 अरब रुपए का फंड मिलने का इम्कान। महकमा खजाना ने मोटरवे पर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने की स्कीम भी बजट में शामिल कर ली है। महकमा खजाना ने सेहत और तालीम का गैर तरक्याती बजट फाइनल कर लिया है। महकमा तालीम का गैर तरक्याती बजट 607 अरब रुपए होगा। महकमा सेहत के दोनों महकमों का गैर तरक्याती बजट 414 अरब रुपए होगा। महकमा खजाना ने महकमा तालीम और महकमा सेहत की बजट तजावीज़ तैयार कर ली है। सरकारी स्कूलों के लिए आइंदा माली साल में 44 अरब रुपए के फंड्स मिलने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 20 अरब से ज्यादा के फंड मिलने का इम्कान है। तरक्याती बजट का ज्यादा हिस्सा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीका को दिए जाने की तजावीज़ है। महकमा खजाना ने मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने की स्कीम बजट में शामिल कर ली। रेस्क्यू सर्विस शुरू करने के लिए बजट में गाड़ियां मांग ली। रेस्क्यू 1122 ने पहले मरहले में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सर्विस शुरू करने के लिए महकमा खजाना से बजट मांगा है। दूसरी जानिब तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तलबा और तालबात को जान बचाने की ट्रेनिंग देने की स्कीम भी बजट में शामिल की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 120 अरब रुपए के फंड देने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने फंड के अजरा की असूली मंजूरी दे दी। नए माली साल में 120 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक कंपनी के ऑपरेशंस की मद में ये बजट दिया जाएगा। चुबरजी क्वार्टर्स में 129 फ्लैट्स पर मुश्तमिल हाई राइज रहायशी इमारतों के मंसूबे की स्कीम महकमा खजाना ने स्कीम बजट में शामिल कर ली। महकमा INC ने चुबरजी क्वार्टर्स में नए फ्लैट बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। पंजाब हुकूमत ने LDA को झंडी करा दी। मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती स्कीमें नए माली साल में शामिल नहीं होंगी। सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत स्कीमें ही मुकम्मल कराना होंगी। नए माली साल में शहर में अंडरपासेस, फ्लाईओवर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा मंसूबों का इन्हिसार वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियार पर होगा। पंजाब हुकूमत ने LDA को मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती स्कीमों को नए माली साल में झंडी करा दी। LDA अपनी कोई स्कीम नए ADP में शामिल नहीं करा सकेगा। LDA अंडरपासेस, फ्लाईओवर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को नए माली साल में शामिल नहीं करा सकेगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से आइंदा प्रोजेक्ट्स पेश करने की सूरत में सप्लीमेंट्री ग्रांट पर इन्हिसार किया जाएगा। अथॉरिटी को नए माली साल में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत स्कीमें मुकम्मल कराना होंगी। LDA गुज़िश्ता माली साल की ADP स्कीमों को मुकम्मल करेगा। माजी में LDA 20 अरब तक के मंसूबे हर साल ADP में शामिल करवाता रहा है। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब के कर्ज का पहाड़। गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब तक पहुँच गई। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब के कर्ज का पहाड़। गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब तक पहुँच गई। पंजाब हुकूमत सिर्फ सूद की मद में 160 अरब रुपए नए माली साल में अदा करेगी। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर एजेंसीज को ये सूद अदा करेगी। गंदम की मद में कौमी बैंकों को भी सूद अदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रवा साल पंजाब हुकूमत ने 74 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए, लेकिन आइंदा माली साल में कर्ज की वापसी के साथ साथ सूद भी अदा किया जाएगा, जिसके लिए बजट में बाकायदा रकम रखी जा रही है। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की शरह बेहतर बनाने का मंसूबा ठप। जिले शोबा सेहत ने वैक्सीनेटर्स की फील्ड ड्यूटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में 46 वैक्सीनेटर्स दफातर में बराचमान। ड्यूटी पर न होने से हिफाजती टीकों का अमल मुतासर।
बच्चों को हिफाजती टीके कौन लगाएगा? जिला शोबा सेहत ने वैक्सीनेटर्स की फील्ड ड्यूटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फील्ड अफसरान दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकले। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की शरह बेहतर बनाने का मंसूबा ठप हो गया। सेक्रेटरी सेहत ने खसरा की हालिया वबा के बाइस तमाम वैक्सीनेटर्स को फील्ड ड्यूटी पर भिजवाने का हुक्म दिया गया। जिला शोबा सेहत ने अहकामात पर 10 रोज बाद भी अमल नहीं किया। 46 वैक्सीनेटर्स दफातर में बराचमान है। ड्यूटी पर न होने से बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का अमल मुतासिर हो गया। हर टाउन में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 2 DSV की असाम के मुताबिक उनका काम सिर्फ डाटा जमा करना है, लेकिन इसके लिए हर टाउन में एक की बजाय 3 या इससे ज्यादा वैक्सीनेटर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट में 9 वैक्सीनेटर्स इस काम के लिए तैनात हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन से भीख मंगवाने वालों के लिए सजा 10 साल करने की समरी काबीना को इरसाल। पंजाब में भिखारी माफिया के चीफ्स की शामत आ गई। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले सख्त सजा पाएंगे। नए कानून में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। भिखारी माफिया गैंग लीडर्स को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद कैद भुगतनी होगी। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक मासूम बच्चों के अज़ा ज़ाया करने और जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म होगा। इससे कबल भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को सजा दिलाने के लिए कानून मौजूद नहीं था। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम की मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी। सुभान गार्डन और गुलशन लाहौर के रिहायशियों का LDA के खिलाफ एहतजाज। पाक BWD के मुलाजिमीन इदारे की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। फैसल चौक, काहना नौ, सुभान गार्डन और गुलशन रावी के रिहायशियों ने LDA के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन ने LDA पर घरों को कोड़ियों के भाव खरीदने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगाया। LDA इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। LDA का जमशेद डीलर आया, उसने कहा जी घर बेचना है। मैंने कहा जी घर मैं क्यों बेचूँ, मैं इतनी मुश्किल से पैसे जमा किया, मैंने घर बनाया। तो जब मैंने उधर घर बनाया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये LDA ने ले ली है जगह। मैंने कहा कहाँ लिया, मैंने कहा हमसे हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। ठीक हो गया, हमें कहते हैं 45,000 ले लो तो चले जो 5 मरले का घर बना हुआ। पाक PWD के मुलाजमीन का इदारे की बंदिश और करप्शन इल्ज़ामात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने हुकूमत से इदारे की बंदिश के नोटिफिकेशन को वापस लेने की अपील की है। हमारे अदारे ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी अच्छे पार्लियामेंट हाउस तक हर अदारे ने बनाई हैं, बेहतरीन कारकर्दगी है। हम पे जो इल्ज़ाम लगा के ये कहा जा रहा है कि ये करप्शन करते हैं, इनको बंद कर दो। हम जो मुलाजिम हैं, लो पेड मुलाजिम हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं। जब हमें ये बात हम तक पहुंची है तो हम तो रात को सो नहीं सकते, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। कम तनख्वाह और बकाया जात की अदम अदायगी पर स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर खेल को स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान की जानिब से तनख्वाहों पर गलत ब्रीफिंग दी गई। मुजाहरीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तनख्वाहों के मामले का सख्ती से नोटिस लें। प्रॉपर्टी टैक्स और नादहिंदा गाड़ी मालिकान की शामत आ गई। 3,78,000 डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें इंस्पेक्टर्स के हवाले। लाहौर में 1600 से ज़ायद जायदादें सील, 12 घंटे में 3.5 करोड़ का टैक्स वसूल, 14 गाड़ियां बंद। प्रॉपर्टी टैक्स और नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। एक रोज में लाहौर में 1600 से जायद कमर्शियल जायदादें सरबमोहर कर दी गईं। टोकन टैक्स और नॉन रजिस्ट्रेशन पर 413 गाड़ियों की चालान 14 बंद कर दी गई हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि सरबमोहर की गई कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान के जिम्मा 32 करोड़ का टैक्स वाजिबुल अदा है। डिफाल्टर से 12 घंटों में 3.5 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। टोकन टैक्स और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ भी नाकाबंदी का दुरानिया 8 घंटे कर दिया गया है। टोकन टैक्स डिफाल्टर गाड़ी मालिकान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करके 1.5 करोड़ से जायद का टैक्स वसूल किया गया। DG एक्साइज ने 30 जून तक रोजाना नाकाबंदी और प्रॉपर्टी सरबमोहर करने के लिए दिया गया हदफ पूरा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का 9 मई को चलाओ घेराव के मुकदमात में बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अबूरी जमानतों में 12 जून तक तौसी। हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी की बोगस भर्तियों के केस में दरखास्त जमानत पर प्रोसिक्यूटर जनरल से दलाइल तलब कर लिए। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात बानी PTI की अबूरी जमानतों में 12 जून तक तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी और मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। मियां महमूद रशीद के खिलाफ 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात, 11 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की समात 11 जून, 5 मुकदमात में समात 12 जून तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात, यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समात
12 जून तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। 9 मई को जलाओ घिराव के 4 मुकदमात। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी गई है। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किक बैक्स वसूली का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान मछली मंडी बना रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने रहे, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत एक मरतबा फिर कोरम पूरा करने में नाकाम रही। स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रवायत 2 घंटे और 42 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। नुक्ता एतराज पर अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने एहतजाजन कहा कि पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक को रूहानी उस्ताद कहते रहे, जिस पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी तो ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने रहे, नारेबाजी की। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, साकिब निसार की बाकियात आज भी पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं। इनका लीडर को आसमान से नहीं उतरा, सबसे बड़ा पाकिस्तान का चोर, सबसे बड़ा पाकिस्तान का डाकू, सबसे बड़ा पाकिस्तान का दहशतगर्द लीडर इनका लीडर है। अमजद अली जावेद ने कहा कि अस्पतालों की रिवैम्पिंग का शोबा इलाका ममनू है, जिसमें बड़ी बड़ी कहानियां बन रही हैं। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक लीगी क़यादत पर तनकीद में गुस्से में आ गए, बोले मुझ पर सेहत के मुतल्लिक बात की जाए, वगरना इल्जाम लगाएंगे तो फिर तोशा खाना घड़ी चोर का जिक्र करूंगा। अपोजिशन रुकने असम्बली राना शहबाज ने कोरम पूरा न होने की निशानदेही की तो कायम मकाम स्पीकर ने इजलास सोमवार की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से सफीर तुर्किया डॉक्टर महमद पिकासी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमद पिकासी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बाजतो और दीगर भी मौजूद थे। तजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। तुर्किया के सफीर ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मनसूबों पर एक दूसरे से ताउन करना चाहते हैं। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की दरख्वास्तों पर रिलीफ फ्राहमी के अहकाम जारी किए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना ने मुलाकात की और दरपेश मसाइल से आगाह किया। कांस्टेबल शौकत अली मरहूम के बेटे की बतौर ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती की दरखास्त पर AIG एडमिन को रिलीफ की हिदायत की। इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन की महकमाना तरक्की की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को मेरिट पर रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया। डॉक्टर सफ़ी की क़यादत में अमरीकी स्कॉलर्स के वफ़द का पंजाब हायर एजुकेशन का दौरा। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए बाहमी तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुतर्जमे कुरान आलमी स्कॉलर डॉक्टर सफ़ी की क़यादत में अमरीकी स्कॉलर्स का वफ़द पंजाब हायर एजुकेशन के ऑफिस पहुंचा। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने टीम के हमरा वफ़द का इस्तकबाल किया। मुलाकात में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए बाहमी तबादले और इश्तराक पर इत्तफ़ाक़ किया गया। डॉक्टर सफ़ी ने कहा कि जदीद साइंसी मालूमात से कुरान की बेहतर फ़हम में मदद मिलती है। कुरान तदब्बुर तफक्कुर का मुतालबा करता है। के तालिबात की समर स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच। हर तालिबा ने दूसरे से सबकत ले जाने की सर तोड़ कोशिश की। खिलाड़ी कहती हैं कि इस तरह के इवेंट से सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर समर स्पोर्ट्स के दौरान क्रिकेट के मुकाबले हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर कॉलेज सुमेरा सत्तार कहती हैं वाइस चांसलर LCWU के विजन के मुताबिक खिलाड़ियों को आइंदा सीजन के लिए तैयारी का मौका दे रहे हैं। बेसिकली ये जो फेस्टिवल है उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि ऑफ सीजन ट्रेनिंग से इनका जो कंडीशनिंग है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, ताकि जब अपकमिंग सीजन में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी इनकी तैयारी भी हो, और प्लस इन्हीं मैचेस के थ्रू जिनका इंटरेस्ट होगा उनको हम रजिस्टर्ड करेंगे फॉर द समर कैंप्स। खिलाड़ियों का कहना था कि समर स्पोर्ट्स में हमें अपनी गेम बेहतर करने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट्स और इवेंट्स होने चाहिए ताकि गर्ल्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, ताकि लड़कियां अपनी गेम दिखाएं और आगे आएं। बहुत अच्छा इवेंट था, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए स्पेशली लड़कियों के लिए
کہ سپورٹس زیادہ بڑھنی چاہیے لڑکیوں کے لیے، اور ایسے ایونٹس ہم لوگوں کے لیے ہمیں بینیفیشیل ہے۔ بہت اچھا ایونٹ کروایا گیا اور میری ٹیم نے یہ ایونٹ ون کیا، باسکٹ بال ٹیم نے۔ میں باسکٹ بال کی ٹیم کی کیپٹن ہوں ایمن محمود، اور اس طرح کے ایونٹس اور ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بہت ایکسپوجر ملتا ہے اس طرح کے ایونٹ سے۔ پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج کے مابین میچ ڈرا ہو گیا، جس پر دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔